میں اور آپ شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں. جب استاذ ایسا ہے تو شاگرد کیسا ہوگا؟ جب استاذ ایسا ہے تو شاگرد اور دو ہاتھ آگے ہوگا. جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے استاذ کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کے جذبے کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کی قربانی کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، مالبا کی جیل سے جیسے ہی آتے ہیں آ کر کے سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں اور لوگوں سن لو، انگریز کی حکومت میں اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جتنے پروڈکٹ اس انگریز نے تیار کیے ہیں ان کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ تمام کے تمام فتوے کوئی اور نہیں، حسین احمد دے رہا ہے. ذرا کان کھول کر کے سن لینا. جیسے یہ فتوے دیے گئے تو مولانا حسین کو بھی گرفتار کر کے لاہور کی جیل کے اندر لے جایا گیا، اور لے جا کر کے انگریز جج نے کہا اے حسین ہم نے سنا ہے کہ تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے اور اس کا ساتھ دینا حرام اور ناجائز ہے. کیا تو نے یہ کہا ہے؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں اے گوری چمڑی والے تو کیا کہتا ہے؟ کہا ہے تیری اس عدالت میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں ہاں تیرے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے، ہاں تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو کہنے کی بات کر رہا ہے کہ تو نے کہا ہے، کہا نہیں، یہی کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. نظام کون بدلنے کے لیے اس تاریخی سرزمین کا سفر کرتے ہیں جس نے کھلی فضا میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کا یہ موقع عنایت کیا ہے. میری مراد ہے ملک ہندوستان کی وہ تاریخی سرزمین جسے شہر میرٹھ کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں کا ایک نمائندہ جو آسمان خطابت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، جسے ہم اور آپ بڑے ہی ادب اور احترام سے حضرت اقدس مفتی خالد صاحب کے نام سے جانتی ہے. آئیے استقبال کرتے ہیں کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ. یہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مفتی صاحب ممبر نور پر تشریف لا چکے ہیں. آپ جو ساتھی پیچھے کھڑے ہیں یا باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے وہ براہ کرم تشریف لائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے،
کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان نے ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں میرے اور آپ کے اوپر نازل ہو جائیں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس گلشن کے روح رواں حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی دام ظلہم العالیہ، جو ہم تمام کے تمام چھوٹے بچوں کی اپنی دست شفقت سے اور مشفقانہ اور مربیانہ نصیحتوں سے اکثر سرپرستی فرماتے رہتے ہیں، اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ہم سب کے لیے باعث سند ہیں۔ میرے بھائی اور بھی حضرت اقدس حضرت مولانا فیروز احمد صاحب قاسمی رفیق محترم، حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب قاسمی دام ظلہم العالیہ، اور حضرت والا کے لخت جگر کہ جن کی محبتوں نے مجھے یہاں اور آپ کو یکجا کیا، حضرت اقدس حضرت قاری رضوان صاحب دام ظلہم العالیہ۔ ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب کی ایک ایما پر اور ان کی آواز پر یہ بڑے بڑے قرائے اعظام اور اسی طریقے سے بڑے بڑے نعت خواں میری اور آپ کی نظروں کے سامنے یقیناً یہ کسی کرامات سے کم نہیں، ورنہ یہ تمام کے تمام قرہ اور یہ تمام کے تمام شعراء اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب ہیں کہ جن کا وقت نکلنا اور مجھے اور آپ کو ان کا وقت ملنا یقیناً بڑا مشکل۔ یہ قاری رضوان کی محنتیں اور محبتیں کہ تمام کے تمام شعراء اور قرہ ہمارے اس کمزور سے گاؤں میں جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ مدرسے کو اور مدرسے کے روح رواں کو اور آپ تمام کو اور آنے والے مہمانوں کو اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس گلشن کو ہمیشہ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ میرے بھائی
अभी जब हजरत वाला दामत बरकातुहुल आलिया अपनी नसीहतों से मुझे और आपको नवाज रहे थे और आपको आवाज लगा रहे थे कि ओ लोगों, ये प्रोग्राम सजाया गया आपके लिए, उलमा को बुलाया आपके लिए, जहां बैनर लगा हुआ है कि महफिले हमदो नात है, यहाँ पर शुआरा की नातें भी हैं और यहाँ पर कुर्रा की क़िरातें भी हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने बतलाया कि हमने एक बच्चे और कमजोर तालिब इल्म को बुलाया है, वो कोई और नहीं, मेरा नाम उनकी ज़बान मुबारक पर आया। साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका मौज़ूए सुखन ये रहेगा, उनकी गुफ्तगू का अंदाज ये रहेगा, उनके कलाम का रुख ये रहेगा। लिहाजा मैंने तभी से अपने जहन के अंदर ये बात बिठाने की कोशिश की कि इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि जहां ये बैनर महफिलो हमदो नात का है और क़िरात का है, यहाँ पर एक और जोड़ लिया जाए, ये जश्न यौम आज़ादी का भी है। यहाँ पर मैं और आप एक और ताल्लुक से जमा हुए इस मुल्क की सरजमीन को आज़ाद कराने के बाद जो दिन मुझे और आपको मिला, जिसको मैं और आप 15 अगस्त के नाम से जानते हैं। लिहाजा इसमें आओ अपने बड़ों को याद करें, आओ अपने उलमा को याद करें, आओ उन अल्लाह के दीवाने और परवानों को याद करें कि जिनकी कुर्बानियां इस जमीन के नीचे बिछी हुई हैं, यहाँ की ईंटों के नीचे बिछी हुई हैं। जिसको किसी आलिम ने क्या खूब कहा, अरे किन्हें बुलाते हो और किन्हें याद करते हो, अरे इतना गैरों का पसीना भी नहीं है जितना अपनों का खून बिछा हुआ है, जितना अपनों की लाशें बिछी हुई हैं, क्यों उनको याद नहीं किया जाता। यहाँ तक कि स्कूलों में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, बड़े बड़े फंक्शनों में चले जाएं, सिर्फ 2-4 नाम रटे रटाए हैं, उनको याद कर लिया जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे उलमा का नाम फहरिस्त में नहीं है, हमारे कुर्बानी देने वाले अक्सर उलमा का नाम फहरिस्त से हटा दिया गया। वरना अगर देखो ये आजादी कोई मजाक नहीं था, ये आजादी की सांसें लेना ये कोई मजाक नहीं था। जानते हो कितने दिन यहाँ पर अंग्रेज तसल्लुत जमा करके गया है, कितने दिन यहाँ मुझे और आपको गुलाम बना करके गया है। उलमा बतलाएंगे 1 या 2 दिन नहीं, 2 या 4 साल नहीं, बल्कि पूरे 200 साल मुझे और आपको वो गुलाम बना करके गया है। क्या उनको यहाँ से भगाना सिर्फ 1 या 2 इंसानों का काम था, 1 या 2 जमातों का काम था? ओ अल्लाह के बंदो, आओ उलमा से मालूम करो। ये उलमा मुझे बतलाएंगे कि उलमा की नस्लें फसलों की तरह काट दी गई, तब जाकर के मुझे आपको आजादी नसीब हुई। मेरे भाई, मैं गुफ्तगू करने चला और अगर किसी को बात करते हुए भी देखता हूं तो सिर्फ वो 1857 से आगे की बात करता है, यहाँ से लेकर के आगे की कुर्बानी की बात करता है। हालांकि 1857 से पहले तकरीबन 100 साल पहले ओ अल्लाह के बंदो, तने तनहा मुसलमान उनके मुकाबले के लिए खड़ा हुआ था। तने तनहा अल्लाह के नेक बंदे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए और अपनी कौम और कुरान और इसी तरह शरीयत की हिफाजत के लिए तने तनहा अंग्रेज का मुकाबला कर रहे थे। आओ तुम्हें लेकर के चलो, तो पहला कदम इस अंग्रेज ने इस जमीन पर रखा है, ये उलमा तुम्हें बतलाएंगे। सबसे पहला कदम मुंबई के साहिली किनारे पर और कालीकट की सरजमीन पर 1499 के अंदर ये अंग्रेज अपना कदम यहाँ पर रख चुका था और मुंबई के साहिली किनारे पर 30,000 पाउंड जमा करके इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी थी और वक्त के बादशाह को लालच दिया गया था, वक्त के बादशाह हम यहाँ पर तिजारत करेंगे, इस मुल्क को ताकतवर बनाएंगे, इस मुल्क को तिजारत के जरिए से आबाद करेंगे। हालांकि उस वक्त में उलमा फरमाते हैं हमारे मुल्क को ताकतवर बनने की जरूरत न थी। अरे ये हमारा मुल्क उस वक्त में सोने की चिड़िया कहलाता है, उस वक्त में यहाँ की जमीन आज सोना उगलती है, उस वक्त में यहाँ की दीवारों पर हीरे और जवाहरात जकड़े हुए हैं। अरे तो इसको मजबूत करने की बात करता है, यहाँ की सरजमीन सोना उगलती है, यहाँ की जमीन हर नेमत उगलती है। अगर लाल किले के दीवारों को देखो तो हीरे और जवाहरात जमे हुए हैं, अगर कुतुब मीनार की दीवारों को देखो, अगर कुतुब मीनार की बुलंदियों को देखो तो वहां
यहाँ की जमीन भी सोना उगलती है और यहाँ की दीवारें भी हीरों से जड़ी हुई हैं। इसको क्यों ना अपने कब्जे में किया जाए। लिहाजा उसने 1499 के अंदर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखता है। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मेरे पास शुआराए किराम की लंबी फहरिस्त है और कुर्राए इज़ाम की लंबी फहरिस्त है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तवालत नहीं दूंगा बल्कि मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो मैं 1857 से पहले की गुफ्तगू करने चला। अरे चलिए 1757 में, जो 1857 से तकरीबन 100 साल पहले की बात कर रहा हो, अंग्रेज देखता है बंगाल की सरजमीन पर, अरे इस बंगाल की सरजमीन बड़ी जरखेज है, वहां की जमीन बड़ा सोना उगलती है, वहां के लोग बड़े खुशहाल कहलाते हैं, लिहाजा चलो इस जमीन को सबसे पहले अपने कब्जे में लेना शुरू करो। लेकिन जैसे बंगाल की सरजमीन पर जाने की कोशिश करता है, वहां पर 22 साल नौजवान है जिसको मैं और आप आज से नवाब सिराजुद्दौला के नाम से याद रखेंगे। ये अल्लाह का नेक बंदा 22 साल का नौजवान है जिसके सर पर अभी इक़्तिदार का ताज सजाया गया है। अंग्रेज इस तरफ रुख करता है कि अगर इस नवाब सिराजुद्दौला को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये पूरी बंगाल की सरजमीन हमारे हाथों में आ जाए। लिहाजा मुकाबले के लिए चलता है। उधर से नवाब सिराजुद्दौला तकरीबन 50,000 फोर्स को लेकर के चलता है और अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। पिलासी के मैदान में ये मैदान सजा दिया गया। लिहाजा ये नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज के मुकाबले के लिए निकलता है और तारीख कह रही थी कि रब्बे काबा की कसम आज नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज की नस्लों को मिटा करके रख देगा, क्योंकि 50,000 की फोर्स कोई कम फोर्स नहीं हुआ करती। लेकिन अंग्रेज मैदान से ज्यादा लालच का शिकार ज्यादा होता है, लालच लेता भी है, लालच देता भी है। उसने नवाब का मुकाबला तो नहीं किया बल्कि नवाब का जो वजीर है जिसको मैं और आप मीर जाफर के नाम से जानते हैं, उसको जाकर के लालच देता है और कहता है अगर तू इस नवाब सिराजुद्दौला को हमारे हाथों से कत्ल करा दे तो बंगाल का हुक्मरान तुझे बना दिया जाएगा। लिहाजा इस मिट्टी की जहां बहुत सारी खासियतें हैं, मैं एक अपनी दर्दी कि गुफ्तगू आपसे करने चला हूं, कड़वी लगे तो मेरे भाई अपने अंदर झांकना कि वाकई में ये कमी है इस मिट्टी के अंदर। जहां इस मिट्टी की बड़ी खासियतें हैं, जहां यहाँ की जमीन बड़े सोने उगलती है, लेकिन इसकी एक कमी ये भी है कि जरा से सिक्कों में बिक जाती है, ये जरा से सिक्कों में अपने ईमान का सौदा कर लेती है, ये जरा से सिक्कों में अपनों का खून करा देती है, ये जरा से सिक्कों में अपने को नाकामी की तरफ ढकेलवा देती है। ये इस मिट्टी की खासियत भी है। यहाँ तक के सगा भाई अपने भाई का ख्याल नहीं कर पाता, यहाँ तक के कभी कभी लालच भी इतना बढ़ जाता है कि अपने बाप तक को मौत के घाट उतार देता है, अपने सगे भाइयों को धक्का दे करके खुद कामयाबी की तरफ पहुंच जाता है। मैं कहने ये चला जहां इस मिट्टी की बड़ी खासियत है, इस मिट्टी की एक कमी ये है कि जरा से टुकड़े अगर फेंक दिए जाएं तो औरत के सौदे पर आ जाता है। नवाब सिराजुद्दौला के साथ यही हुआ और मीर जाफर ने ये लालच लेकर के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदानों में जामे शहादत दिला दिया और वो बेचारा मौत की नींद सो गया। लिहाजा अलगर्ज नवाब सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर कुछ दिनों के लिए हुक्मरां बना दिया गया, लेकिन गद्दार की उम्र ज्यादा नहीं हुआ करती। गद्दार रोशन ख्वाब लेकर के तो आता है लेकिन वो कभी ताबीर नहीं होते, वो कभी मुकम्मल नहीं होते। कुछ ही दिनों के बाद मीर जाफर को भी हटा दिया गया, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत कर दिया गया। अल्लाह के नेक बंदो, मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा। जब ये बंगाल की सरजमीन अंग्रेजों के हाथों में चली गई, ये उड़ीसा की सरजमीन अंग्रेजों के हाथों में पहुंच गई। अब अंग्रेज ने हिंदुस्तान की जमीन पर भी नजर घुमाई, कौन है जो हमारी ताकत का मुकाबला कर सकता है, कौन है जो हमारे सामने चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो उसकी नजर दक्कन की तरफ पड़ती है, उसकी नजर हैदराबाद की तरफ पड़ती है, उसकी नजर तमिल की तरफ पड़ती है। वहां पर एक अल्लाह का शेर है जिसको मैं और आप फतेह अली टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। इस वक्त में अगर किसी से अंग्रेजी हुकूमत घबराई हुई है तो वो कोई और नहीं, वो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 3
तब्दीलियों कामयाबियों की पहुंची हैं। लिहाजा अंग्रेज की नींदें हराम है कि अगर ये सुल्तान टीपू हमारे रास्ते में रहा तो हम कभी इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा इसको किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए, और ये रास्ते से हटने वाला नहीं है। इसको लालच दे दिया गया, लेकिन लालच कबूल करने वाला नहीं है। इसको जमीन का लालच दे दिया गया, इसको जायदादों का लालच दे दिया गया, इसको हीरे और जवाहरातों का लालच दे दिया गया, लेकिन ये किसी लालच में आने वाला नहीं है। और इसकी तलवार जब वार करती है तो कई कई जहन्नमियों को जहन्नम हासिल करती है। लिहाजा इसको किसी तरीके से रोका जाए। अगर ये लालच से न रोके, अगर ये लालच से न रोके, अगर ये इक़्तिदार के लालच को कबूल न करे, तो फिर वही हाल किया जाए जो सिराजुद्दौला के साथ किया है। लिहाजा इसके भी वजीर को पकड़ा जाए, जिसको मीर सादिक के नाम से जानते हैं, इसको भी लालच दिया जाए। चुनांचे इसी तरह लालच दिया गया। यहाँ की मिट्टी ने सुल्तान का भी एक मुआयना और उसका भी सौदा कर लिया। अलगर्ज ये हुआ कि श्रीरंगपट्टनम के अंदर मेरा भाई, ये मेरा अल्लाह का शेर, जिसको मैं और आप सुल्तान टीपू के नाम से जानते हैं, अंग्रेज के खिलाफ हथियार नहीं डालते बल्कि मुकाबला करते हुए इस दुनिया से ये कहते हुए जाते हैं, जब अंग्रेज ने कहा था कि तुझे लालच दिया गया लेकिन तूने कबूल न किया गया, तुझे इक़्तिदार थाली में पेश किया गया लेकिन तूने कबूल न किया, क्या कहा था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने? और वो नौजवान नस्ल जरा उनका जुमला याद रखना, क्या कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मैं गीदड़ की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगा, मैं शेर की तरह तेरा मुकाबला करके एक ही दिन में अपने वतन के लिए, दीन के लिए और शरीयत के लिए, कौम के लिए मर मिट करके इस दुनिया से चला जाऊंगा। कौन है जुमला कहने वाला? हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अगर वक्त होता तो और गुफ्तगू लंबी करता। आज जब हजरत टीपू सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हुए, अंग्रेज को यकीन नहीं हो रहा था कि चला गया। कभी लात मारता है, कभी उनको देखता है कहीं उठ करके फिर मुकाबला न करने लगे। लिहाजा जब देख लिया कि दुनिया से रुखसत हो चुका है तो जनरल हारिस ने खड़े होकर के कहा था, और लोगों कान खोल करके सुन लो, जो सबसे बड़ी चट्टान हमारे रास्ते की थी वो आज हमारे से हट गई। आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हम इसके मालिक हैं, क्योंकि आज हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हजरत टीपू सुल्तान दुनिया से रुखसत हो गए हैं। क्या बात करते हो? ये मैं तमाम की तमाम गुफ्तगू 1857 से पहले की करने चला। अब जरा दिल्ली की तरफ आइए, दिल्ली की सरजमीन पर आइए। यहाँ पर एक इल्मी घराना मौजूद है, यहाँ पर एक अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, जिनको मैं और आप हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नाम से जानते हैं। वो इन चीजों को समझते हैं कि अंग्रेज रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ आ रहा है और इसको गुलाम बना रहा है। लिहाजा इन्होंने तमाम का तमाम लिटरेचर तैयार किया, लेकिन उम्र मुकम्मल हो गई, इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनके लफ्ज़े जिगर हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया था और कहा था, ऐ हिंदुस्तान के लोगों सुन लो, ये अंग्रेज मेरी और आपकी तरफ गुलामी की जंजीरें लेकर के आ रहा है, और अगर हमने ध्यान न दिया तो मैं और आप तमाम के तमाम गुलाम बन जाएंगे। और ऐलान कर दिया था, खोल करके सुन लो, ये मुल्क अब दारुल अमन नहीं रहा है, ये मुल्क दारुल हरब हो चुका है, ये मुल्क लड़ाई का मैदान हो चुका है, ये मुल्क जिहाद का मैदान हो चुका है। और मेरा फतवा ये है कि दारुल अमन नहीं बल्कि दारुल हरब है। और दारुल हरब का मसला ये है कि तमाम के तमाम इंसान, हाँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान, तमाम के तमाम अपने घरों से बाहर निकले, अपनी मसनदों को छोड़े, अपनी खेती खलियानों को छोड़े, अपने कारोबार को छोड़े और अपने बदन पर हथियारों को सजाएं और मैदान मुकाबले के अंदर आ जाएं। और इस अंग्रेज को जितनी ताकत से हो सके इस अंग्रेज को इस जमीन से भगा दिया जाए। ये सबसे पहले आवाज लगाने वाले कोई और नहीं, हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी
की कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल कर देना। मेरे भाई ये सबसे पहला फतवा चला है, और खाली फतवा नहीं दिया बल्कि अपने मुरीदों को बुलाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इनको ये अमली जामा पहनाने के लिए हजरत एक रक्बा बनाते हैं, एक काफिला तैयार करते हैं कि तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन में घूमना है और वहां के नौजवानों को जिहाद के लिए तैयार करना है, अंग्रेज से मुकाबले के लिए तैयार करना है। लिहाजा सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की सरजमीन से सफर शुरू करते हैं और तमाम के तमाम मुल्क में घूम करके नौजवानों को तैयार करते हैं, उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें जिहाद के लिए तैयार करते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं और मुख्तसर करने चला कि जब ये नौजवान तैयार हो जाते हैं तो इनको इकट्ठा करके सबसे पहले पंजाब की सरजमीन पर लेकर के चलते हैं, और पंजाब की सरजमीन पर ले जाने का मकसद ये है कि वहां पर अंग्रेज नहीं बल्कि एक अपना सिख नाम का, जिसको मैं और आप रंजीत सिंह के नाम से याद रख सकते हैं, वो अंग्रेजों के बहकाए में आकर मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद कर रहा था। हजरत ने सबसे पहला हदफ उसी को बनाया कि हर चीज में कामयाब होने के लिए पहले या तो अपनों को साथ करना पड़ता है, या अपनों को अगर वो साथ न दे तो उन्हें रास्ते से हटाना भी पड़ता है। लिहाजा मेरे भाई सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हम पंजाब की सरजमीन पर पहुंचते हैं, पेशावर पर कब्जा कर लेते हैं, छोटी बड़ी जंगें सामने आती हैं, इन जंगों में कामयाबी हासिल करके पेशावर की सरजमीन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और वहां पर खिलाफत का ऐलान कर देते हैं। हाँ, रंजीत सिंह को जब ये मालूम होता है तो एक पर्चा खत लिख करके भेजता है और कहता है अहमद हम जानते हैं कि तुमने पेशावर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि अटक से परे की जमीन तुम्हारी है, अटक से दूसरी तरफ की जमीन मेरी है, तुम भी अपनी आराम से हुकूमत करो, मैं भी अपनी आराम से हुकूमत करूं। क्या कहा था हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने? ऐ रंजीत सिंह कान खोल करके सुन ले, मैं यहाँ हुकूमत करने के लिए नहीं आया, अल्लाह की कसम जब तक अहमद शहीद के बदन में जरा सी भी जान है इस तमाम जमीन को अल्लाह और कुरान के निजाम के मुताबिक चलाऊंगा। मैं हुकूमत के लिए नहीं आया, मैं अंग्रेज से मुकाबले के लिए आया। लिहाजा रंजीत सिंह को ये बात हजम नहीं हुई, मालूम किया किस वक्त में उनके आराम का वक्त है, तहज्जुद के वक्त जब ये अल्लाह के नेक बंदे सोए हुए हैं, ये धोखे से आकर के हमला करता है। हमला इतना सख्त था कि इनको ठहरने और संभलने का मौका न मिला। मुख्तसर ये कि बालाकोट की सरजमीन पर 1830 या 31 में हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद जामे शहादत नौश फरमा कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कहां तक सुनाओ अपने इन उलमा की दास्तां, कहां तक सुनाओ अल्लाह के बंदो जिन उलमा को मैं और आप अपने दिलों में जगह नहीं देते, कहां तक उनकी गुफ्तगू सुनाओ और जरा सुनते चले जाओ। जब चारों तरफ से कुछ नजर नहीं आया तो फिर अलगर्ज मुख्तसर ये कि फिर मेरे और आपके अल्लाह के नेक बंदे थाना भवन की सरजमीन पर जमा होते हैं, वहां पर एक मशवरा और मीटिंग बुलाई जाती है। इस मशवरा और मीटिंग का मकसद ये है कि अंग्रेज का मुकाबला किस तरीके से किया जाए, अंग्रेज को रास्ते से किस तरीके से हटाया जाए। चुनांचे इस तरीके का मशवरा हुआ, थाना भवन की सरजमीन पर उलमा इकट्ठे होते हैं, तकरीबन 474 उलमा इस सरजमीन पर इकट्ठे किए जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले तरीका इख्तियार किया जाता है कि पहले खिलाफत कायम की जाए, अपना अमीरुल मोमिनीन तैयार किया जाए। सबकी राय और मशवरा यह तय हो गया कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अपना खलीफा मुंतखब कर लिया जाए और इनके हाथ पर बैत की जाए। कौन? हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। अरे जो खानकाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता है, जो खानकाहों में बैठकर अल्लाह की ज़रबे लगाकर लोगों के दिलों को साफ करता है, लोगों के दिलों को साफ करके उनमें अल्लाह की मोहब्बत को भरता है। लेकिन जब बात कौम की आई, जब बात दीन की आई और जब बात मुल्क की आई तो इन्होंने अपनी खानका को छोड़ा है और छोड़ करके थाना भवन की सरजमीन पर अपने लोगों से खिलाफत का ऐलान कर दिया जाता है। यकीनन अगर तुम्हारी राय ये है तो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खलीफा बनने के लिए तैयार
तैयार है, कौन सबसे पहले बैत करेगा? हजरत अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पहले हाथ बढ़ा करके बैत करने वाले हजरत मान रशीद अहमद गंगोही हैं। हाँ, दूसरा हाथ बढ़ाने वाले हजरत मान कासिम नानोतवी हैं। तीसरा हाथ बढ़ाने वाले हजरत हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये अल्लाह के बंदे आगे बढ़कर हजरत के हाथ पर बैत लेते हैं, फिर तमाम के तमाम उलमा बैत लेते हैं। और बैत लेने की मकसद क्या है? सोना नहीं, खाना नहीं, बल्कि मकसद ये था युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक़तुलूना फयुक़तलूना, कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया जाएगा, या तो कत्ल करके आएंगे या जामे शहादत पी करके आएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। ये जामे शहादत नौश करके आएंगे। किसी ने बीच में से खड़े होकर के कहा, अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अंग्रेज का मुकाबला करते हो, बड़ी ताकत में है, बड़ी कुव्वत और हथियारों के साथ है, और तुम्हारी तादाद भी कम है। उस वक्त हजरत मौलाना कासिम नानोतवी को जलाल आया था और खड़े होकर के फरमाया था, ओ लोगों, क्या हमारी तादाद गाजियान बदर से भी कम है? क्या हमारी तादाद 313 से भी कम है? अगर उनसे कम नहीं है फिर क्यों घबराते हो? अगर अल्लाह की मदद उनके साथ है तो क्या अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं आ सकती? क्यों घबराने की कोशिश करते हो? जरा चलो तो सही, अल्लाह की मदद तुम्हारा इंतजार कर रही है। थाना की सरजमीन पर, थाना भवन में ये खिलाफत का ऐलान कर दिया गया। उसी वक्त में जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि ये उलमा एक जगह इकट्ठा होकर के इस तरीके से तदबीरें कर रहे हैं, लिहाजा उसने एक तोपखाना सहारनपुर की सरजमीन से शामली के लिए भेजा ताकि इन उलमा का मुकाबला किया जाए। वो सहारनपुर की सरजमीन से तोपखाना लाया जा रहा है। मान रशीद को आकर के किसी ने खबर दी, हजरत तोपखाना लाया जा रहा है। हजरत सीधे खलीफतुल मुमिनीन की खिदमत में पहुंचते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, हजरत अंग्रेज हमारे खिलाफ तोपखाना लेकर के आ रहा है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस तोपखाने को अपने कब्जे में करने की कोशिश करूंगा। हजरत हाजी साहब इजाजत देते हैं। मान रशीद अहमद गंगोही 40-50 लोगों को लेकर जो सहारनपुर से शामली की तरफ रास्ता आता है, वहीं बीच में एक बाग पड़ता है। हजरत अपने साथियों को लेकर के छुप जाते हैं और छुप करके कहते हैं, जब अंग्रेज यहाँ से तोपखाना लेकर के गुजरे तो तुम एक साथ फायर कर देना। चुनांचे हजरत लेकर के छुप गए। अंग्रेज जैसे वहां से गुजरा, हजरत ने कहा कि फायर खोल दिया जाए। चुनांचे जैसे फायर किया गया, अंग्रेज की नींद हराम हो गई। अरे यहाँ पर न जाने कितने लोग छिपे हुए हैं, अपनी जान बचा करके दौड़ जाओ। अंग्रेज दौड़ गया। हजरत मान रशीद अहमद गंगोही अरे उस तोपखाने को पकड़ते हैं और पकड़ करके घसीटते हुए थाना भवन की सरजमीन पर खानका के सामने ला करके पटक देते हैं और ऐलान कर देते हैं, वो लोगों सुन लो, ये आलिम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं, ये कलम चलाना नहीं, रब्बे काबा की कसम अगर वक्त पड़े तो तोपखाने को छीनना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती खालिद साहिब, नारे तकबीर। ये खाली कलम चलाना नहीं, खाली किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि अगर वक्त इजाजत दे और अगर वक्त आवाज दे तो अंग्रेजों के हाथ से तोपखाने छीनना भी जानता है, उनका मुकाबला करना भी जानता है। लिहाजा मेरे भाई मैं गुफ्तगू करने चला, जब ये ताकत इतनी हाथ में आई तो अब खलीफतुल मुमिनीन हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ऐलान कर देंगे, चलो अब इन अंग्रेजों का मुकाबला शामली की छावनी में सबसे पहले शुरुआत कर देंगे। और शुरुआत करने के बाद इस छावनी को अपने कब्जे में ले देंगे। लिहाजा जब तमाम के तमाम उलमा अपने रुफका को लेकर थाना भवन से शामली की तरफ चल देंगे तो अंग्रेज हवास बाख्ता होकर किले के अंदर रूपोश हो जाता है और दरवाजों को बंद कर लेता है, दीवारों में सोराख करके इन उलमा की तरफ गोलियां बरसाता है, जिससे उलमा का बड़ा जानी नुकसान होता है। इसमें हजरत हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जब वो देखते अंग्रेज दरवाजा नहीं खोलता, ये तने तना अल्लाह के नेक बंदे नन्ही सी जान उस दरवाजे पर पहुंचते हैं और पहुंच करके अल्लाह का नाम लेकर हजरत अली के नक्शे कदम पर
हुए उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अल्लाह इस कोशिश को कामयाब करता है और हजरत हाफिज जामिन शहीद के जरिए से वो दरवाजा तहस नहस हो जाता है। हजरत हाफिज जामिन शहीद दरवाजे को तोड़कर अपने साथियों को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि चलो अल्लाह का नाम लेकर इस अंग्रेज का मुकाबला करो। लिहाजा जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेज गोलियां बरसानी शुरू करता है। ऐसे वक्त में एक गोली आकर हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नाक के नीचे आकर के लग जाती है। आप बेहोश होकर के गिर जाते हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अपने कंधे पर बिठाते हैं, बराबर की मस्जिद में लेकर के आते हैं। हाँ, हजरत हाफिज जामिन से कहते हैं, ए जामिन, हमसे पहले मुकाबला जीत गया, हमसे पहले जन्नत चला गया, हमसे पहले, और जाकर के कह देना, तू भी जाकर के कहना कि तेरे पीछे कुछ और गाजी और शहीद आने वाले हैं। ये हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो आज इस जंग के अंदर शहीद हो गए, एक गोली आकर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के सर में लगती है और सर में लगने के बाद हजरत का तमाम कुर्ता मुबारक लहू लुहान हो जाता है, खून में तरबतर हो जाता है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह अल्लाह का नाम लेकर सर पर हाथ रखते हैं। कासिम क्या हुआ? कहा हजरत सर में गोली लग गई है जिसकी वजह से खून पूरे बदन पर है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं और अमामे को सर से हटाते हैं। रब्बे काबा की कसम, गोली का कोई निशान मौजूद नहीं था। ये बुजुर्गों की बुजुर्गियत की अलामत है, ये उनकी करामातें हैं जो अल्लाह हर जगह और हर वक्त में दिखाने के लिए तैयार रहता है। और वो गोली क्या बिगाड़ दी? क्योंकि इस नन्ही सी जान से मेरा अल्लाह दारुल की जो बुनियाद रखवाने वाला था। कहां तक अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की दास्तान सुनाऊं? जब अंग्रेज ने देखा कि हमारी कोई भी तहरीक जिसको हम कुचलते हैं दूसरी जन्म ले लेती है, आखिर इसकी वजह क्या है? कहा गया, ओ अंग्रेज सुन ले, जब तक उस सरजमीन पर कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले, जब तक उनमें जहां पढ़ाई होती है मदारिस इस्लामिया, जब तक उनके दरमियान में उलमा मौजूद हैं, जब तक उनके दिलों में अपने दीन, अपने वतन और अपनी शरीयत पर मर मिटना उनके दिलों के अंदर है, तो कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर वहां कामयाब होना है तो उलमा को अपने रास्ते से हटा दे। अगर तू कामयाब होना चाहता है तो तमाम मदारिसों को जमीन से मिला दे। अगर तू कामयाब होना चाहता है तो उनके दिलों से जज्बे जिहाद को निकाल दे। अगर तू कामयाब होना चाहता है तो एक एक आलिम को जमीन दोस्त कर दे। लिहाजा ये बात उसके समझ आई और उसने ये तहिया किया, उसने ये इरादा किया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने मदारिस हैं सब पर बुलडोजर चला करके उनको खत्म कर दिया जाएगा। लिहाजा मेरे भाई, सिर्फ दिल्ली की सरजमीन पर तकरीबन 1000 मदारिसों को जमीन दोस्त कर दिया गया और फिर जहां भी मदरसे की तामीर नजर आई उसे जमीन दोस्त कर दिया गया। लेकिन मेरे भाई वो नहीं जानता था, ओ अकल के कोरे, ओ गोरी चमड़ी वाले, मदरसा तामीरों का नाम नहीं है, मदरसा बिल्डिंगों का नाम नहीं है, मदरसा जमीनों का नाम नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर किसी दरख्त के नीचे, अगर वो अनार का दरख्त क्यों ना हो, अगर पढ़ाने वाला मुल्ला महमूद है और पढ़ने वाला महमूद हसन देवबंदी है तो तामीर की जरूरत नहीं, जमीन की जरूरत नहीं, सिर्फ अनार के दरख्त के नीचे से मदरसे शुरू हो जाया करते हैं, जिसको दुनिया दारुल देवबंद के नाम से जानती है। इनके लिए तामीरों की जरूरत नहीं, बड़ी जमीनों की जरूरत नहीं। ये जहां अगर पेड़ के दरख्त के नीचे भी बैठ जाए और पढ़ाने वाला पढ़ने वाले मौजूद हो, वहीं से मदरसा शुरू हो जाया करता है। तामीरों का नाम मदरसा नहीं है, तो इनको जमीन दोस्त करके समझते हैं कामयाब हो जाएगा। लिहाजा फिर उसने उलमा को पकड़ा और कहा कि इनको रास्ते से हटाया जाए। चुनांचे उलमा गवाह हैं, उलमा तारीख जानते हैं कि जब अंग्रेज ने उलमा से अपनी दुश्मनी को निकाला तो एक ही वक्त में तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए, कि जिनमें तकरीबन उलमा की तादाद 53,000 और 56,000 है। ये मैं अपनी गुफ्तगू नहीं बल्कि एक अंग्रेज मुहर्रिम थॉमसन की गुफ्तगू करने चला हूं कि जिसने अपनी किताब के अंदर लिखा था कि चांदनी चौक की
खिलाफ नहीं हो, तुम अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए नहीं हो, अभी तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन थॉमसन कहता है पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए थे, रब्बे काबा की कसम, हाँ अपने बदनों से कुर्ता उतरता हुआ देखकर और सामने श्वाले चल रहे हैं, उनको चलता हुआ देखकर उनके ईमानों के अंदर कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो कह रहे थे और पुकार पुकार करके कह रहे थे कि हमें अपनी जान नहीं बचानी है, हमें अपनी शरीयत अपना मुल्क बचाना है। अगर जान बचा करके ले गए तो कौम को और अपने शहीदों को क्या जवाब देंगे कि तुम जरा से लालच को लेकर अपनी जान बचा करके आया हो। थॉमसन कहता है पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए 40 को पकड़ा गया, शोलों पर लिटा दिया गया, कबाब की तरह भून दिए गए, फिर 40 को बुलाया गया, कहा कि देख लो हशर यही होगा, परवाह कोई नहीं, उन 40 को भी लिटा दिया गया, फिर खंजीर लाए गए, उन्हें काट करके उनकी खालों से गोश्त निकाल लिया गया, फिर जिंदा आलिम उसके अंदर बंद कर दिया गया और फिर उसी तरह उसको जला दिया गया। यहाँ तक के बड़े बड़े तोप खाने लाए गए और आलिम को पकड़कर तोप के मुंह पर लगा दिया गया, गोला छोड़ दिया गया। कहाँ आलिम की लाश गई है, कहाँ उसकी हड्डी गई है, कहाँ बोटी गई है, कुछ मालूम नहीं, लेकिन तमाम उलमा एक ज़बान थे कि जान तो जा सकती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, जनाब हज़रत मौलाना खालिद साहिब। जान तो जा सकती है लेकिन अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपनी शरीयत से हम गद्दारी कर लें, ये हमारी मिट्टी में नहीं, ये हमारे उस्तादों ने हमें नहीं सिखाया, ये हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया, लिहाजा ये उलमा की जमात थी। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, इसी के ताल्लुक से फिर जब तमाम तहरीकें नाकाम हो गई, उलमा गवाह में 1857 के बाद 1866 में यानी तकरीबन 9 साल के बाद मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह 1866 में 15 मुहर्रमुल हराम के अंदर देवबंद की सरजमीन पर दारुल उलूम का क़याम फरमाते हैं। इस क़याम का मकसद क्या है? इस क़याम का मकसद कुछ और नहीं, अंग्रेज का मुकाबला करना है। इस क़याम का मकसद कुछ और नहीं, अंग्रेज को इस जमीन से भगाना है। फिर यहाँ से वो शागिर्द तैयार हुए जिनको मैं और आप शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद देवबंदी के नाम से जानते हैं। फिर उन्हीं के शागिर्द हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी उन्हीं के शागिर्द हैं जिन्होंने दारुल उलूम से निकलकर वहीं एक बाग में बैठकर तहरीक रेशमी रुमाल का शेड्यूल तैयार किया, तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद रखी और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को अफगानिस्तान की सरजमीन पर भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि वहां से मुकाबले के लिए ताकत को लाया जाए। वो जब तमाम ताकत इकट्ठी कर चुके तो उन्होंने अपना यह खत किसी कागज में नहीं बल्कि रुमाल पर लिखा जिसको रेशमी रुमाल कहा गया। उस रुमाल पर तमाम का तमाम शेड्यूल और एजेंडा लिख दिया गया कि इसको मौलाना शेखुल हिंद को जाकर के दे देना। चनाचे जो लेकर के आने वाला है किसी तरीके से वो खत पकड़ा गया, वो अंग्रेज के हाथ लग गया। जैसे ही अंग्रेज ने वो रुमाल खोल करके देखा, वो रेशमी रुमाल खोल करके देखा तो अंग्रेज की नींद हराम थी और वो कपकपा रहा था और कह रहा था अल्लाह की कसम, जिसने हमें पैदा किया है उसकी कसम, अगर ये रुमाल हुसैन अहमद मदनी के उस्ताद मौलाना महमूद देवबंदी के अगर हाथ लग जाता तो कसम हमारे पैदा करने वाले की हमारा यहाँ नामो निशान तक मौजूद न होता, हमारा यहाँ पर कुछ भी मौजूद न होता। लेकिन मेरे भाई, मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो रुमाल पकड़ा गया जिसको मैं और आप रेशमी रुमाल कहते हैं, उसी को तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है। कभी वक्त होगा तो मुफस्सल गुफ्तगू तहरीक रेशमी रुमाल के साथ करूंगा। अल्लाह मुझे भी उम्र दे दे, अल्लाह आपको भी उम्र दे दे, अगर वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। मेरे भाई, ये तहरीक भी नाकाम हो गई, अलगर्ज वारंट निकाल दिए गए कि जहां महमूद हसन देवबंदी मिले या तो शूट कर दिया जाए या गिरफ्तार कर दिया जाए। हजरत रूपोश होकर मदीने की सरजमीन पर पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि नसीब है, ज़हे नसीब के वहां से गिरफ्तार कर लिए गए और माल्टा की सरजमीन, माल्टा की जेल के अंदर ले जाकर के बंद कर दिए गए। अंग्रेज से मालूम किया और अंग्रेज जेलें तो यहाँ भी मौजूद हैं, जेलें तो यहाँ भी बड़ी सख्त हैं, लेकिन तुम महमूद हसन देवबंदी को अरे माल्टा क्यों भेजता है? तो अंग्रेज ने एक जुमला कहा था, वो सुन लो, हमने इसके अंदर वो
دیکھے ہیں, وہ شعلے جب والے دیکھے ہیں کہ اگر ہم نے بھول سے بھی شیخ الہند کو ہندوستان کی زمین کی کسی جیل کے اندر بھی بند کر دیا, اگرچہ یہ جیل میں رہے گا لیکن اپنے اس شعلوں کی حرارت سے یہاں بھی کوئی نہ کوئی تحریک تیار کر لے گا. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, علماء دیوبند, دارالعلوم دیوبند. اس لیے ہم اسے یہاں پر قید نہیں کریں گے بلکہ مالٹا کی جیل کالا پانی میں ان کو لے کر کے جائیں گے تاکہ ان کی حرارت لوگوں کو محسوس نہ ہو. میرے بھائی میں مختصر گفتگو کرنے چلا, انہی کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی, اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑ رحمت نازل کر دینا, جن کو میں اور آپ شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں. جب استاذ ایسا ہے تو شاگرد کیسا ہوگا, جب استاذ ایسا ہے تو شاگرد اور دو ہاتھ آگے ہوگا. جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے استاذ کو دیکھتے ہیں, اپنے استاذ کے جذبے کو دیکھتے ہیں, اپنے استاذ کی قربانی کو دیکھتے ہیں, اپنے استاذ کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں, مالٹا کی جیل سے جیسے ہی آتے ہیں آ کر کے سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں, اور لوگوں سن لو, انگریز کی حکومت میں اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, اور جتنے پروڈکٹ اس انگریز نے تیار کیے ہیں ان کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ تمام کے تمام فتوے کوئی اور نہیں, حسین احمد دے رہا ہے. ذرا کان کھول کر کے سن لینا, جیسے یہ فتوے دیے گئے تو مولانا حسین کو بھی گرفتار کر کے لاہور کی جیل کے اندر لے جایا گیا, اور لے جا کر کے انگریز جج نے کہا, اے حسین ہم نے سنا ہے کہ تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, اس کے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے, اور اس کا ساتھ دینا حرام اور ناجائز ہے. کیا تو نے یہ کہا ہے؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں, اے کوڑی چمڑی والے, تو کیا کہتا ہے؟ کہا ہے تیری اس عدالت میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں, ہاں تیرے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے, ہاں تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو کہنے کی بات کر رہا ہے کہ تو نے کہا ہے, کہا نہیں, یہی کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. لہذا انگریز کہتا ہے, اے حسین اس کا نتیجہ جانتے ہو. ہاں اپنے سر سے پگڑی کو اتارتے ہیں اور اتار کر کے کہتے ہیں نتیجہ جانتا تھا, اس لیے نتیجہ اپنے ساتھ لے کر کے چلا ہو. یہ جو میرے سر پر پگڑی بنی ہوئی ہے یہ امامہ نہیں, یہ امامے کے ساتھ ساتھ میرا کفن بھی ہے. اپنے گھر والوں سے کہہ کر کے چلا تھا اور کہا تھا کہ جب انگریز مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دے تو مجھے انگریز کے کپڑے میں نہیں بلکہ میرے امامے کے کپڑے میں مجھے دفن کیا جائے, مجھے قبر کے حوالے کیا جائے. مولانا جوہر آ کر کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں اور پڑھ کر کے کہتے ہیں, اللہ کی قسم حسین احمد مدنی اپنے جملوں کو بدل لو, ابھی قوم کو ضرورت ہے, ملک کو ضرورت ہے, دین کو ضرورت ہے. کہا جوہر ہٹ جاؤ, رب کعبہ کی قسم اگر آج جملے بدل گئے تو ایمان بدل جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اگر آج جملے بدل گئے تو ایمان بدل جائے گا. اے جوہر مجھے اس طرح نہ کہو کہ میں اپنے جملوں کو بدل دوں اس ذرا سی موت کی وجہ سے, کہ جو موت نہیں بلکہ زیست ہے, جو ہماری ناکامی نہیں بلکہ کامیابی ہے, اس کی وجہ سے میں اپنے جملوں کو بدل لوں. کل جا کر کے اللہ کو کیا جواب دوں گا, شہیدان وطن کو کیا جواب دوں گا, ہاں شہیدان قوم کو کیا جواب دوں گا. اس لیے جملے نہیں بدل سکتا. یہ ہیں میرے اور آپ کے علماء, کہاں تک گفتگو سناؤں, کہاں تک گفتگو سناؤں. وقت تیزی کے ساتھ انگڑائیاں لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے, ورنہ نوجوان تیری سماعتوں کو دیکھ کر کے دل چاہ رہا ہے کہ گفتگو کو اور آگے بڑھاؤ, گفتگو کو اور آگے لے کر کے چلوں. لیکن میں اپنے مہمانوں کا حق دبانا نہیں چاہتا, میں اپنے شعراء اور قرہ کا حق دبانا نہیں چاہتا. لیکن ہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ میرے اور آپ کے علماء ہیں, ایک وقت میں اپنی قوم کو بھی بچایا, اپنے دین کو بھی بچایا, اور کہہ دو وطن کی محبت کا ڈھونگ کرنے والوں کو رب کعبہ کی قسم اسی وقت میں ہمارے علماء اپنے وطن کو بچا کر کے بھی نکل گئے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.